السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مولا میں بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آقا، جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا، آئیے انہی کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز، وہ نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، وہ نماز جو ایمان کی پہچان اور مسلمانوں کی شان ہے، وہ نماز جو بندے کو اللہ کے قریب کر دینے کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو ہر درد کی دوا اور ہر مرض کا علاج ہے، وہ نماز جو قبر میں جانے کی ضامن ہے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ نماز جو دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بیویوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بیویوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیویوں نماز۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کر جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بیویوں نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا سیدھا سادہ یہ ترجمہ ہے کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، مگر آج ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور سماج کا بیشتر طبقہ نماز سے کافی دور نظر آتا ہے۔ نماز کی پابندی تو دور کی بات ہے، حیرت تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 75% طبقہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اسے تو یہ بھی خبر نہیں کہ نمازیں کتنی ہیں، کس کا کیا وقت ہے، کون فرض ہے کون واجب، کون سنت ہے کون نفل، نیز فرض و واجب میں کیا فرق ہے، سنت و نوافل کے کیا کیا احکامات ہیں۔ کیا یہ وقت کا علمیہ اور حیرت کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن اور مومنہ ہونے کا ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں، مگر ہمیں نمازوں کا نام تک نہیں آتا، ہمیں فرض اور واجب میں فرق تک سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر ہمیں قاعدے سے درود و سلام بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیسے مسلمان اور کیسے مومن ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت ہی پہلے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ جو مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سرزمین گلرا ٹانڈا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، کیا بات ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی
कुछ तो हो, बताओ मुसलमान भी हो। क्या बात है, वाह। इसलिए हमें अपने आप को सुधारने, इसलिए सुनो सुनो ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, सिर्फ नाम की मुसलमान और मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी सादका और पुख्ता ईमान वाली बन जाओ, ऐसी पाकीज़ा और कामिल मोमिना बन जाओ कि तुम्हें देखकर ना सिर्फ दुनिया वाले मुसलमान कहें, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी ये कहें, हाँ ये मुसलमान है, ये मोमिन है। हकीकत में तो वही लोग सच्चे पक्के मुसलमान, मोमिन और मोमिना होते हैं जिन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुसलमान कहें। इसलिए हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। नमाज रोज़ा की पाबंद बनने की ज़रूरत है, वरना हमें दुनिया और आखिरत में खसारे और नुकसान के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अगर मामलात दुरुस्त हो इंसान के, अगर मामलात दुरुस्त ना हो इंसान के, तो जानवर से भी बदतर है आदमी की हयात। क्या बात है, क्या बात है। ए खातूने जन्नत की पैरवी का दावा करने वालियों, आओ जरा देखो शहजादिये रसूल मादरे हसनैन करीमैन 92 शेर खुदा की इबादत का क्या आलम था, वो किस कदर सजदों की मुतावाली थी। रिवायतों में आता है कि जब मदीने के लोग खा पी कर सो जाते थे तो सैयदा फातिमा बजाए आराम के घरेलू काम काज से फारिग होकर मुसल्ला बिछाती और इस कदर तवील क़याम तवील सजदे करती कि कभी कभी पूरी की पूरी रातें गुजार देती और एक ही रात में फजर की अजान हो जाती। चुनांचे सैयदा फातिमा नमाज से फारिग होकर यूं अर्ज करती, ऐ मेरे मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरी रात तो खत्म हो जाती है मगर सैयदा का सजदा पूरा नहीं हो पाता। क्या बात है, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए हजरत फातिमा की इबादत पर कि कभी सजदे में कभी क़याम में कुरान करीम की तिलावत करते तस्बीह तहलील करते करते पूरी की पूरी रातें गुजार देती, मगर फिर भी दिल को इत्मीनान न आता और तंगी वक्त का अपने रब से शिकवा करती। मगर आज एक हम और आप हैं कि कायदे से एक वक्त का सजदा भी अदा नहीं हो पाता, फिर भी ये नाज़ो नखरे और खुशफहमी रहती है कि हमसे बढ़कर दूसरी कोई और नमाजी क्या होगी। वाह वाह। खुशकिस्मती से अगर हमारी बात ख्वातीन नमाज़ी पढ़ भी लेती हैं तो उनकी नमाजों में लज्जत व तड़प नहीं होता, खुशू खुजू नहीं होता, बल्कि हाल ये होता है कि सर सजदे में और दिल अमूर खानेदारी में, सर सजदे में दिल बाल बच्चों में, सर सजदे में दिल फैशन के बाजारों में, सर सजदे में दिल दुनियादारी और मक्कारी में। लिहाजा ए मेरी इस्लाम की शहजादियों, क्या बात है। याद रखो कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये ख्याल ना जम सके तो कम अज कम इतना ख्याल रखो कि अल्लाह हमें देख रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान लिहाजा खूब दिल लगाकर नमाज पढ़ो, मुकम्मिल इत्मीनान और हुजूर कल्ब के साथ नमाज पढ़ो, खूब पाकी का ख्याल रखकर नमाज पढ़ो, खूब अच्छी और बेहतर तरीके से वुज़ू कर नमाज पढ़ो। आज हमारी अक्सर माएँ और बहनें गरीबी और मुफलिसी का रोना रोती हैं और ये शिकवा करती हुई नजर आती हैं कि घर में रुपया पैसा और बरकत मालूम नहीं होती, बलाएं और मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। मगर मेरी माएँ और बहनें कभी ये सोचने की ज़हमत नहीं करती कि घर में आखिर नहुसत की क्या वजह है। तो याद रखिए, जब आप ये सोचेंगी तो जवाब यही मिलेगा, ए गफलत पेशा खातून, जब तेरे घर का घर बेनमाजी अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान है तो तेरे घर में, तेरे बाल में और तेरी दौलत में बरकत कहाँ से होगी। लिहाजा हमें आपको उसी के अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। लिहाजा आइए अब मैं आपको उसी के ज़िम्न एक वाक़या सुनाते हुई चलूं जिसे सुनकर शायद कि आप गफलत के दवेज़ पर्दे की पाबंद हो जाएं। एक शख्स सरकार गौसे आज़म बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मैं बड़ा परेशान और मफलूक हाल इंसान हूँ।
हुजूर मैं अपने गम अपनी तकलीफ और गम के मदावे के लिए आया हूँ, लिहाजा दस्तगीरी फरमाइए, कोई नुस्खा या तावीज़ ही दे दीजिए जिससे मेरे घर की नहुसत दूर हो जाए। हुजूर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी भी नमाज पढ़ती है, फिर भी बरकत नहीं होती। तो सरकार गौसे आजम ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद की और कोई नुस्खा दुआ या तावीज़ देने के बजाय बस इतना फरमाया, ए शख्स जाओ और जाकर अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका दो। क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। वो शख्स सोचने लगा, कहने लगा, हाय अल्लाह ये कैसा तावीज़ है, मगर चूंकि बड़े पीर दस्तगीर का फरमान था इसलिए वो शख्स गया और जाकर अपने घर के सहन वाले दरवाजे पर जो अब तक बेपर्दा था उस पर पर्दा लटका दिया। पर्दा लटकाते ही परेशानी सैयदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मअदुल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अता पर्दा लटकाते ही परेशानी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी, नहुसत का खात्मा हो गया और वो शख्स खुशहाल और मालदार हो गया। फिर एक दिन वो शख्स एक तोहफा लेकर हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ। सलाम और खैरियत के बाद पूछा, हुजूर ये तो बता दीजिए आखिर वो पर्दा लटकाने में कौन सी हिकमत थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशहाल मालदार हो गया हूँ। तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स सुन, तेरा घर लबे सड़क यानी रोड के किनारे है और उस रास्ते से कई बेनमाजी इंसानों का गुजर होता है। इस तरह उन बेनमाजी इंसानों की नहुसत भरी नजरें तेरे घर के आंगन में पड़ती थी, तो इसलिए बरकतें तेरे घर से रूठ गई थी और तू परेशानी के शिकार हो गए थे। अब जब तुमने पर्दा लटका दिया है तो बरकतें दोबारा लौट आई हैं और तुम खुशहाल हो गए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरात सोचिए तो सही कि बेनमाजी की नहुसत का ये आलम है कि जिसके घर में पड़ जाए बरकतें रूठ जाएं, खुशहाली मुँह छिपा ले, तो जिस घर में सबके सब बेनमाजी अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान हो तो उस घर में बरकत कैसे आ सकती है। लिहाजा ए मेरी माँ और बहनों, खुशहाली चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा चाहती हो तो नमाज पढ़ो, जन्नत में जाना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, कब्र के अज़ाब से बचना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, दोज़ख से बचना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अपने आरज़ुओं की तकमील चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अपने औलादों को फरमा बरदार देखना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, और मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी की आरज़ू रखती हो तो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो कुछ बात बन पड़ती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म करती हूँ। तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, तो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।